just got reminded of a typical scene of some other Sunday. पापा लैपटॉप पे ऑफिस का कुछ काम कर रहे और अंदर से आवाज आ रही मम्मी की जोर से, अजी सुनते हो, इस कबर्ड को जरा आगे पुश कर दो, आज संडे है तो मैं सोचूं कि थोड़ा उसका साफ सफाई कर दे। तो पापा वहीं से बैठे बैठे जवाब दे देते, दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। हाँ मैं तो देख रही 2 घंटे से एक ही जगह पे बैठे हूँ। तो पापा भी बाहर से जवाब दे देते, हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि तू क्या काम कर रहे। तो ये टिपिकल सीन है। इसमें लाइक वी अज्यूम, पापा अज्यूम दैट ही इज डूइंग वर्क, मम्मी अज्यूम दैट शी इज डूइंग वर्क। तो ऐसे बहुत बार क्लैशेस होता है कि हमें लगता है वी आर वर्किंग, राइट? और फिजिक्स में वर्क का डेफिनेशन कुछ अलग है, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली द वर्क। जैसे अपने महाभारत में भी एक सीन है, राइट? जहां पे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने उंगली पे गोवर्धन पर्वत खड़ा कर लेते हैं। तो वी इज इट अ वर्क द लॉर्ड कृष्णा इज डूइंग और नॉट, वो हम आज सीखेंगे। तो वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो लेट अस प्रोसीड, राइट चिल्ड्रन? तो व्हाट इज एग्जैक्टली वर्क एज पर फिजिक्स? तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क, उसमें 2 चीजें बहुत क्लियर होती है, ओके? दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई अप्लाइड फोर्स ऑन दिस वॉल, आई वुड लाइक टू पुश द वॉल। मैं जोर से कोशिश कर रहा हूं इस वॉल को पुश करने का, बट आई बिलीव इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू displace the wall. So according to physics, I am not doing any work. So work done by me is 0, right? So I applied force, but there was no displacement. So work done I found was, कितना work done है? 0 है. There is no work I did. Now दूसरा example है where we can find the displacement. For example कि आप देख रहे हो एक बॉल है, बॉल, यू जस्ट रिलीज द बॉल फ्रॉम व्हाट? अ स्लोप. सो बॉल इज मूविंग, बट बॉल इज मूविंग ऑन इट्स ओन एंड वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स, देन ऑल्सो यू विल से दैट वर्क इज नॉट डन. सो व्हेन यू विल से दैट वर्क इज डन, इट इज वेरी सिंपल. व्हेन वी हैव force applied as well as displacement produced, then we can say that work is done. So work is said to be done when we apply force and there is a displacement in an object in the direction of force or along the line of force. This word is very important. Displacement should be along the line of force. For example, now depending upon the direction of force, we can find out whether which type of work it is. Positive work done, negative work done, or 0 work done. For example, it's a during weight lifting, this is a weight. Say for example, you are lifting a weight. Okay, बहुत normal reaction होता है. If it is a heavy weight, what we do, what the weightlifter does, he is trying to lift the weight up. Okay, he has lifted up till shoulder. Now he wants to lift it further up. But he is applying force in upward direction, but the weight since heavy goes down. इतना heavy weight है कि वो नीचे आ रहा है. So he applied force. Force किस तरफ है? Upward. And the displacement किस तरफ है? Downward. Such a kind of work done is called as negative work done. So what do you mean by negative work done? In which force and the displacement are in opposite direction of each other, right? दूसरे, okay, if that weightlifter can lift the weight, okay, like force उसने up लगाया, okay, and the displacement ये ऊपर चला गया upward, then force and the displacement both are in same direction, then the work done is positive, right? But most of the case he is not able to lift it up or down or whatever, he is not able to move it, there is no displacement produced, then the work done is said to be 0. So बहुत simple है. When we apply force on any object and it get displaced in the direction of force, then we say that work is positive. If it is opposite to the application of force, then it is
negative, and if it is not moving, then work done is said to be 0. So we are talking about mechanical work. So in physics we don't have any concept like a mental work. मैं 4 घंटा बैठा और जम के स्टडी किया. We cannot call it as a work done. तो जो भी बच्चे में 2 घंटे से बैठा हो स्टडी कर रहा हो, फिजिक्स में उसको वर्क नहीं बोला जाएगा. बिकॉज फॉर अ वर्क टू बी हैपन 2 चीजें जरूरी है. एक तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव होना है अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स. अगर फोर्स जिस तरफ है उसी तरफ ऑब्जेक्ट मूव होता है, सो दैट वर्क इज पॉजिटिव. अगर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है, देन दैट वर्क इज नेगेटिव. एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक बड़ा सा अपवर्ड स्लोप है एंड वी आर पुशिंग द कार अप. हमारा फोर्स ऊपर की तरफ है बट द कार इज कमिंग डाउन, देन दैट वर्क इज नेगेटिव. बराबर, बिकॉज फोर्स लाइक दिस, फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क. फोर्स अप है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क डन. देन हाउ वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड, बिकॉज हमें वो भी देखना है. वी नो दैट एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क. अगर आपके पास एनर्जी है तो आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो. अदरवाइज वी कैनॉट डू वर्क. So that way work and energy are directly related to each other, or we can say they are interconvertible to each other. जो अपना फेमस रिलेशन है, आइंस्टाइन फेमस रिलेशन मास एंड एनर्जी, तो ये भी हमें बोलता है कि एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी और मास एंड एनर्जी बोथ आर व्हाट, योर इंटरकन्वर्टिबल. अभी हाउ कम वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल? जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वर्क हम कर सकते हैं. तो ये पावर का रिलेशन क्या है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू कंप्लीट अ वर्क, दैट डिसाइड्स योर पावर. तो पावर इज नथिंग बट, व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क. Wherever the word rate comes, rate का मतलब होता है related with time, upon time. So work done upon time. यहाँ पे एक चीज हमें मिल गई, power is inversely proportional to the time. Inversely का मतलब है अगर कम समय में हम वर्क कर पाते हैं तो power is more, and अगर हम ज्यादा टाइम लेते हैं तो power is less. We know that power is measured in watt. Work, energy, both are measured in what? Work and energy both are measured in what? Your joule. Okay, so this is how we can define, or we can find the relation between work, energy and power. When we talk about the SI unit of work and energy, we can easily find. So we exactly got the relation for work. Work तभी होगा when we apply force and there is a displacement. So simply we have work done is equal to force into displacement along line of force. When we talk about SI unit, force we have in Newton, displacement we have in meter. This is popularly known as joule in the memory of scientist Joule. So 1 joule of work is when we applied 1 Newton of force on an object and it get displaced by 1 meter. This is how we can find out the 1 joule of work. Energy, there are different kind of energy, say kinetic energy, say potential energy, say electric energy, say magnetic energy. All the energies will have the same SI unit, that is joule, because work and energy are interconvertible. Power हमें बताएगा कि ये वर्क कितना स्लो और कितना फास्ट होने वाला है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इफ यू आर डूइंग इट फास्टर यू हैव मोर पावर. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव 1 हॉर्स पावर मोटर, वी हैव 3 हॉर्स पावर मोटर. जिसका पावर ज्यादा है दैट मोटर विल लिफ्ट मोर वाटर इन लेस टाइम एज कंपेयर टू अ मोटर विच हैज अ लेस पावर. थैंक यू चिल्ड्रन.